Today we will start a new topic, that is how do organisms reproduce. So the reproduction is the example of life processes. So if we define reproduction, so it is a process by which living organisms are able to produce the young ones of their own kind. So it is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So in asexual reproduction, only single parent is involved. Then second character is no formation of gamete, no formation of gamete, then no fusion of gametes. So what are the gametes? Gametes are the sperm and ovum which are produced in sexual reproduction. So the offspring produced will be as it is of parent, because there is no recombination, no crossing over of sperm and ovum is there. Only single parent is dividing or some reproducing by other means to produce new one. So the young one produced will be of same kind, totally identical or clone. Then in sexual reproduction, here two parents are involved. Two parents are involved. Then after that, formation of gametes, formation of gametes like sperm and ovum, then fusion of gamete. Fusion of gametes means fertilization will be there to produce young one. So here in this case, the organism or the young one produced will be of mixed type, means recombinant types, means two parents are involved. Like if we can see ourselves, so we are looking somewhat to our parents because of we are getting the characters from mother and father as well. So we are the recombinants. So this is all about asexual reproduction and sexual reproduction. So it is occurring in plants as well as in animals. So first we will see the asexual reproduction types. So in simple words, asexual reproduction has no formation and fusion of gametes, only single parent is involved. Now we will see the methods of asexual reproduction. So the organisms which produces by asexual reproduction is, first method is binary fission, or simply we can write fission. So fission is the splitting of parent into two daughter cells. Suppose this is a single cell or single organism or unicellular organisms. So this is parent cell or parent. So it is dividing into two daughter cells, two daughter cells. So it is dividing into two daughter cells. So it is known as binary fissions, means one cell is splitting into two daughter cells. So it is known as binary fission. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है, और उसका अंदर का जितना भी मटेरियल है, लाइक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है,
वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो दो आइडेंटिकल सेल्स में फॉर्म होगा, या फिर उसमें से थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट जो सेल होगा वो टोटली आइडेंटिकल होगा पेरेंट में, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डीएनए या कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ है। जस्ट ये जो सेल था वो दो में डिवाइड हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ यहाँ पर, और इसका जितना भी जेनेटिक मेकअप था वो सारा पास कहाँ पर हुआ, डॉटर सेल्स में। इसीलिए इसको कहते हैं आइडेंटिकल सेल्स एज पेरेंट। सो ये हुआ बाइनरी फ्यूजन। अब देखते हैं सेकंड इसी का टाइप है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, सो इन मल्टीपल फ्यूजन वन सेल्स गिव राइजेस टू मोर देन टू सेल्स। तो यहाँ पर होता है क्या, सपोज ये एक सेल था, एग्जाम्पल में यहाँ पे सपोज अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, एक से दो सेल बनते हैं। देन सेकंड क्या है, सेकंड में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन में सपोज ये सेल है, ये होता है नॉर्मल एंड फेवरेबल कंडीशंस में। यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये क्या है, एक सेल है, जैसे इस ये आ गया एकदम एडवर्स कंडीशंस में। तो एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, ये सेल डिवाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से एक सिस्ट बना लेगा अपने ऊपर, जिसकी वजह से क्या करेगा, सरवाइव करेगा, जिसको कहते हैं इंसिस्टेशन। तो ये सिस्ट के अंदर ये जो सेल है, इसके सेल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। देन जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जो सेल्स हैं, इसकी जो वॉल है वो टूटेगी और यहाँ से सेल्स निकलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरियल कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। या फिर एक एग्जांपल ले सकते हो आप दूध का, जैसे आप दूध को बॉईल करते हो, तो जब दूध को बॉईल करते हो तो उसमें क्या होता है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे गर्मियों में 8 घंटे बाद 9 घंटे बाद दूध फिर से फट जाता है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे कुछ जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर क्या हुआ था, ये सिस्ट फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो सिस्ट फॉर्मेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ, वो बाद में उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसमें से रप्चर करते हैं और फिर ये बैक्टीरिया बाहर आएंगे और ये फिर से रैपिडली डिवाइड करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो दूध है वो फट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बाइनरी फ्यूजन, अमीबा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने। मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, एक सेल से काफ़ी सारे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन। देन सेकंड देखते हैं, सेकंड है फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, सिंपली फ्रैगमेंट्स का फॉर्म हो रहा है, फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। तो ये मोस्टली होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे कि स्पाइरो वगैरह का एक फिलामेंट है, ये इस तरीके से, ये क्या है, फिलामेंट है, इसका सेल है। तो ये जो सेल है ये क्या होगा, ब्रेक होगा फिलामेंट्स में। जैसे यहाँ से आपने इसको, ये टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, ये एक फिलामेंट बना, ये एक फिलामेंट बना, ठीक है। इस तरीके से फिलामेंट बना, दो फिलामेंट्स बने। तो ये क्या हुआ, एक फिलामेंट से दूसरा फिलामेंट बना और ये फिलामेंट से क्या बनेगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है। ये पेरेंट फिलामेंट हो गया और यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका स्पाइरो गायरा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ये सेल और ये वाले सेल ऊपर के दोनों टूट गए, यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये हुआ फ्रैगमेंटेशन। देन इसके बाद थर्ड है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या है, सपोज आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल प्लेनेरिया का, ठीक है। तो प्लेनेरिया क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद क्या होगा, इसका जो हेड वाला पीस है ये एक पूरी बॉडी बनाएगा, ये वाला एब्डोमेन वाला पार्ट है ये भी पूरी एक बॉडी बनाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा, एक पूरी बॉडी बनाएगा, मीन्स फुल्ली ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इस तरीके से इसके अंदर कितने बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक पेरेंट से 3
ऑफस्प्रिंग बन गए मीन्स रीजनरेट हो रहे हैं यहाँ से। इसका जो हेड वाला पार्ट था, बिकॉज प्लेनेरिया हैज हाई रीजनरेशन पावर, प्लेनेरिया, so this is regeneration. Fragmentation is what? A single filament is splitting into two or more smaller filaments, then they are rising to new filaments. Then in regeneration, if an organism is cut into pieces, then each piece regenerate into whole organism, so it is regeneration. So you need to remember definition and example. इसके बाद फोर्थ देखते हैं, बडिंग। सो बडिंग, सपोज ये मान लो एक सेल है, ईस्ट का सेल, यहाँ पे आपकी बुक में ईस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। सो ईस्ट क्या है? बेकर्स ईस्ट, आप बहुत कॉमन है, जैसे आप जो ब्रेड वगैरह खाते हो वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईस्ट के प्रोडक्ट हैं। सपोज ये ईस्ट का सेल है, यहाँ पर क्या होगा? एक छोटा सा बड बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। बड बन गया तो धीरे धीरे ये क्या होगा? बड जो है वो यहाँ से ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा? ये एक न्यू सेल बन जाएगा, मीन्स ये डिटैच हो गया पेरेंट से। पेरेंट से क्या हुआ? ये डिटैच हो गया और ये क्या हो गया? एक न्यू डॉटर सेल बन गया, ठीक है। ये एक न्यू डॉटर सेल बन गया, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? एक सेल था, उसके ऊपर एक बर्ड बना, बर्ड धीरे धीरे ग्रो हुआ, फिर वो यहाँ से डिटैच हो गया और वो एक न्यू सेल बन गया। तो इसको हम कहते हैं बडिंग। एक तो ईस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है और एक जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में वो है हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा क्या है? ये भी एक मेंबर है एनिमेलिया का। सपोज ये हाइड्रा है तो यहाँ पर क्या होगा? छोटा सा एक बर्ड आएगा, तो ये जो बर्ड है वो धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो करेगा एंड फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। मीन्स एक छोटे से बर्ड से क्या बन रहा है? एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ऐसे प्रोसेस हम कहते हैं बडिंग, ठीक है। इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे कि मोस्टली ये कॉमन है फंजाई वगैरह में। तो आपकी जो बुक है उसमें एग्जांपल दिया हुआ है राइजोपस का। तो इस तरीके से इसको कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्लांट बॉडी है और ये फंगल बॉडी है, ये हो गया स्पोरेंजियम कॉल्यूमेला, स्पोरेंजियोफोर, इसका स्ट्रक्चर है। देन ये जो स्पोरेंजियम है या फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होंगे, ठीक है। ये हो गया स्पोरेंजियम। अब जब ये मेच्योर होगा तो ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। जब ये मेच्योर होगा तो यहाँ से क्या होगा? ये रप्चर होगा, बॉडी रप्चर होगी। देन ये क्या होंगे? यहाँ से डिस्पर्स होंगे, ऐसे स्पोर्स निकलेंगे बहुत सारे। अब स्पोर्स जब निकलेंगे, जैसे यहाँ पे जो फंगस है मोस्टली कहाँ पर ग्रो करते हैं? जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल लाइक ब्रेड है, यहाँ पे इसको मिल गया ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स आ गए तो स्पोर्स क्या मिलेगा इनको? फेवरेबल कंडीशन मिलेगी एंड फेवरेबल कंडीशन के बाद ये क्या होगा? फिर से ग्रो करेगा न्यू फिलामेंटल बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? स्पोर फॉर्मेशन के अंदर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है राइजोपस, ठीक है।
देन एसेक्सुअल का ही एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मीन्स यहाँ पर क्या नेचुरली हो रहा है, हम एक कोई भी प्लांट पार्ट को ले रहे हैं। ये मोस्टली किसमें होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एक प्लांट का पार्ट अदर देन सीड, है ना, सीड अगर होगा तो क्या हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट अदर देन सीड उसको हम लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इट कैन बी बाय रूट्स, शूट, है ना, किसी भी एक पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट की बॉडी पूरी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले लो मॉडिफाइड स्टेम के एग्जांपल्स में जैसे आप देखते हो ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। तो ट्यूबर में आप एग्जांपल जानते हो पोटैटो, है ना, पोटैटो आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो पोटैटो है, इस तरीके से पोटैटो है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, छोटा सा आई लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे इनको हम कट करेंगे और इसको हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ट्यूबर, एग्जाम्पल इज पोटैटो। देन राइजोम, जिंजर तो आप सबने देखा होगा, तो जिंजर इज अ राइजोम, तो उसका भी अगर एक पार्ट लेके आप ज़मीन में गाड़ते हो तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट निकलता है। देन बल्ब, जैसे कि अनियन है, अनियन, गार्लिक, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो एग्जाम्पल आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, मॉडिफाइड स्टेम में क्या है, ट्यूबर है, राइजोम एंड बल्ब। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, राइजोम जिंजर एंड बल्ब इज अनियन, ठीक है। देन इसके बाद है एडवेंटिशियस लीफ। सो एडवेंटिशियस लीफ में सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइलम है, जैसे आपने लीफ देखा होगा, इस तरीके से आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। तो इसकी जो नोड्स होती है यहाँ पे, जो लीव्स के अंदर क्या होती हैं, छोटे छोटे पोजीशंस होती हैं, टर्मिनल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होती है, छोटी सी बर्ड्स होती हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं जब कांटेक्ट में आती हैं सॉइल के, तो यहाँ से क्या होता है, एक न्यू प्लांट और प्लांटलेट बनने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एडवेंटिशियस लीफ और एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। तो लीफ से ही क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो इस लीफ से जो न्यू प्लांट बन रहा है वही क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल में 3 टाइप है। तो यहाँ पर क्या था, नेचुरल था, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट लेके या फिर वो क्या कर रहा है, उससे ग्रो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या सबसे फर्स्ट है, कटिंग। सो कटिंग में होता क्या है, जैसे कोई कटिंग, जैसे आप रोज़ है, रोज़ का एक स्टेम काट के आप क्या करते हो, सिंपली ज़मीन में गाड़ देते हो और उससे एक न्यू प्लांट अराइज होता है। तो कटिंग में क्या हो रहा है, सिंपली आप जैसे शुगर केन है, एग्जांपल में शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्टेम लेते हो, छोटा सा स्टेम लेते हो, 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम लोगे, उसको उतना कट करोगे, देन उसको क्या करोगे, ज़मीन में गाड़ दोगे, तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट बनेगा। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है कटिंग, जिसमें आप कट कर रहे हो। आर्टिफिशियल मीन्स उसमें क्या है, मैन मेड एक्टिविटी हुई। देन लेयरिंग, तो लेयरिंग में होता क्या है, जैसे
लाइव प्लांट है यहाँ पे, सपोज ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट था ये। अब मुझे क्या करना है, इसी प्लांट पार्ट पे रूट्स निकालनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा कट करूँगा, देन यहाँ पे एक मॉस या कोई भी जैसे मॉस ग्रास जो होती है वो लगा दी मैंने यहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर रूट्स ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से रूट्स ग्रो करेंगे तो मैं क्या करूँगा, इतने पार्ट को ले लूँगा और इसको क्या करूँगा, ज़मीन में लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। मीन्स क्या हुआ, एक लिविंग प्लांट पे क्या किया मैंने, एक न्यू प्लांट ग्रो किया, मीन्स उसके रूट्स इनिशिएट करवाए, देन उससे एक न्यू प्लांटलेट्स दिया जिससे एक न्यू प्लांट बनेगा। देन लास्ट है ग्राफ्टिंग, तो यहाँ पे है एग्जाम्पल में इसका गुआवा। देन इसके बाद क्या है, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में होता क्या है तो ग्राफ्टिंग में जैसे कि एग्जांपल ले लो मैंगो, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में जैसे मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो वहाँ पर होता क्या है, जैसे एक काफ़ी स्वीट है मैंगो और एक काफ़ी बड़ा मैंगो है, तो मुझे दोनों के कैरेक्टर्स एक प्लांट्स में चाहिए। तो उसको क्या करूँगा मैं, सपोज ये वाला तो मेरा स्टेम वाला पार्ट हो गया जिसके मुझे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, और दूसरा मेरे पास एक अच्छी वैरायटी का ट्विग है प्लांट का। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने के बाद मैं उसमें कुछ भी जैसे मॉस वगैरह लगा दूंगा ताकि उसका न्यूट्रिएंट यहाँ से आगे जा सके। तो ग्राफ्टिंग में हो क्या रहा है, दो ट्विग को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली ट्विग है इसको हम कहते हैं स्टॉक, और ये जो ऊपर वाली ट्विग है जो हमने न्यू डिजायर्ड कैरेक्टर वाली थी जो ली थी उसको हम कहते हैं सीओन, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में हो क्या रहा है, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो प्लांट्स के बीच का, दो कैरेक्टर के बीच का। एक तो ये मेन प्लांट हो गया, देन हमको जो इस प्लांट पे जो मेन कैरेक्टर चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, वो यहाँ पे लगा दिए। अब मैंने इसी पे एक और अलग लगा दिया, तो ये क्या करेगा, दो वैरायटी के फ्रूट्स सेम प्लांट पे आएंगे मेरे, जैसे फ्लावर्स में भी होता है ये सब। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसका एक टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स। देन आर्टिफिशियल में क्या है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है।